Well, there's some breaking news that's coming in. News 9 has accessed the tender documents that expose major negligence by municipal corporation officials in the Indore pipeline contamination case. The documents show that sewage contaminated Narmada pipeline, which should have been replaced months ago, was delayed because officials sat on the tender process. The tender for replacing the pipeline in Bagratpura was issued on August 8th. Bids were received by September 15th and the tender was scheduled to be opened on September 17th. However, News 9's investigation reveals that the tender was opened more than 100 days later. The project, worth rupees 2.40 crores, received bids from 7 companies, all submitted on time. One bid was later rejected. Despite this, the Municipal Commissioner Dilip Kumar Yadav and the Additional Commissioner Rohit Sisonia did not open the tender. There's a big story that we are tracking at the moment with regard to the contamination of water in Indore. News 9 has accessed the tender documents that expose major negligence by the municipal corporation officials in the Indore pipeline contamination case. Now, the documents show that the sewage contaminated Narmada pipeline, which should have been replaced months ago, was delayed because the officials sat on the tender process. The tender for replacing the pipeline in Bhagirathpura was issued on August 8th. Bids were received by September 15th and the tender was scheduled to be opened on September 17th. However, News 9's investigation reveals that the tender was opened more than 100 days later. The project, which is worth 2.40 crores, received bids from 7 companies, all submitted on time. One bid was in fact later rejected. In fact, we are joined in by Shubham Pandey, who joins us with the latest. Shubham Pandey, ये टेंडरिंग प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम था? उन्होंने क्यों इस टेंडर को आगे नहीं बढ़ा दिया? और इस टेंडर प्रोसेस की डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, अब क्या एक्शन ले इस ऑफिशियल्स के ऊपर होगा? बिल्कुल इसी बात की जांच हो रही है कि आखिरकार टेंडर को क्यों नहीं स्वीकृति दी गई, क्योंकि 100 दिन पहले ये टेंडर ओपन हुआ था 17 सितंबर को, मगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, बंद कर दिया गया। फिर 29 दिसंबर को ओपन किया गया। तो ऐसे में खुद मेयर या फिर कैलाश विजयवर्गीय या पार्षद हर कोई यही बात कह रहा है कि हम 6 महीने पहले से शिकायत कर रहे थे। मेयर ने ये बात कह दी कि मैंने तो टेंडर ओपन कर दिया था, मगर उससे स्वीकृति नहीं दी गई अधिकारियों के द्वारा। तो इसको लेकर एक जांच कमेटी जरूर गठित की गई है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये जांच कमेटी बनाई है। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ चीजें रही और कौन से अधिकारी थे, क्या निगम कमिश्नर थे जिनके जिम्मे ये पूरा काम आता है, टेंडर की प्रक्रिया आती है, और क्यों नहीं किया गया। क्या इसमें कोई बहुत बड़ा करप्शन करना चाहते थे? जो कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि परसेंट के हिसाब से डिमांड होती है कि आप 20%, 30%, 40% हिसाब दिए, इसमें हमें हिस्सा दीजिए, उसके बाद हम टेंडर जो है वो तय करेंगे। तो ये सारे पहलू है और इसकी ही जांच जारी है। अब ये इंक्वायरी, आप ने बोला कि एक इंक्वायरी चल रहा है, और कहाँ प्रॉब्लम्स हुआ है? टेंडरिंग प्रोसेस एक है, इसको हाईलाइट करने के लिए किसी और म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन में किसी और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसमें भी जांच चल रहा है क्या? बिल्कुल, एक ओवरऑल जांच कमेटी तो मुख्यमंत्री ने बनाई है अधिकारियों की, और इसमें 2-3 चीजें हैं। आप देखिए कि 6 महीने, या जो बीजेपी के पार्षद हैं वो कह रहे हैं कि मैंने 3 साल पहले शिकायत की थी, फिर उसके बाद 6 महीने पहले लिखित में शिकायत की, सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की गई। और कैलाश विजयवर्गीय जो इस एरिया के एमएलए हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री है, उनके ही जिम्मे ये सारी की सारी चीजें आती है, मगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया और उसी के चलते ये सारी की सारी चीजें हुई। Thank you, Shubham Pandey, for in fact giving us all those details. As we in fact bring you this latest on the Indore front, News 9 has accessed the tender documents that were in fact issued somewhere in September itself, and these documents, the bids for it were in fact received by September 15th, and the tender was scheduled to be opened on September 17th. However, investigations revealed that the tender process was in fact delayed, and the process was in fact only started 100 days later since the announcement in August. Now, the project, which was worth to be around 2.40 crore, received bids from 7 companies, all submitted on time. One bid was later rejected.
Meanwhile, a laboratory investigation has confirmed that contaminated drinking water caused the vomiting and diarrhea outbreak that has claimed at least 15 lives and affected over 200 residents in the Bhagirathpura area of Indore. Now, the outbreak has raised serious questions about drinking water safety in Indore, which ranked India's cleanest city for 8 consecutive years. The water supply through the Narmada pipeline in Bhagirathpura has been tested, and the report reveals that the presence of bacteria such as fecal coliform bacteria, E. coli bacteria and Klebsiella in the samples. These bacteria can also cause vomiting as well as diarrhea. According to reports, some samples also contained elements like Vibrio cholerae, which are found in cholera. So far, 80 samples have been tested and some of the reports have been received. According to sources, the detailed lab reports may take 1 to 2 days to arrive. Meanwhile, local BJP councillor Kamal Waghela has written to the letter to Chief Minister Mohan Yadav alleging grave criminal negligence and administrative delays by civic officials which led to the tragic deaths. जिस दिन घटना हुई थी उसके बाद हम लगातार नर्मदा का भी सप्लाई कर रहे हैं और उसमें हम लोगों को अनाउंसमेंट कर रहे हैं सुबह 5 बजे से कि ये जो पानी सप्लाई हो रहा है इसको बॉईल करके पिए। तो लगातार लोग उपयोग कर भी रहे हैं, उसके बाद कम भी हुआ। साथ साथ ऐसा लोगों में थोड़ा बहुत डर भी है, भय भी रहा कि नर्मदा से के पानी से कहीं ना कहीं उनको संकोच हो रहा था। तो हमने दूसरी टंकी से 50 टैंकर बुला के जगह जगह हम सप्लाई करवा रहे हैं, उसके माध्यम से जनता की व्यवस्था कर रहे हैं। और अभी आज सुखद है कि मरीज भी कम है, डेथ भी नहीं हुई, भगवान की कृपा भी है। और हमारे लगातार स्वास्थ्य विभाग के आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर सर्वे कर रही, सैंपल ले रही। मेरा पत्र है, मैंने शिकायत करी थी और मुझे 3 साल पहले यहाँ पर जब मैं पार्षद चुना गया तो चुनाव में विषय था हमारा मुख्य रूप से कि हम जीतेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बदलेंगे, क्योंकि उस समय जगह जगह ड्रेनेज की लाइन, नर्मदा की लाइन टूटी फूटी थी और वही पत्र मैंने 3 साल पहले भी दिया था। The National Human Rights Commission has also taken sumoto cognizance of the media report that at least 13 people have died and allegedly consuming the contaminated water in Bhagirathpur area of Indore district. According to the NHRC, the residents had been complaining about the supply of contaminated water supply, but no action has been taken by the authorities. Deputy Chief Minister also expressed grief over the incident in Indore. He had promised strict action against those responsible. मुख्यमंत्री जी स्वयं और नगरीय प्रशासन मंत्री जो उस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय जी दिन रात वहां पर जो अस्पतालों में भर्ती है उनके इलाज में कहीं कोई कसर न रह जाए और ये दुर्घटना का कारण क्या है उसकी जड़ पे जाने का के लिए पूरे प्रशासन को उन्होंने लगा के रखा है। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना हुई है। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सरकार पूरी तरह से सजग है और जो दोषी हैं उनका भी जांच के बाद पता लगने पर कड़ी कार्रवाई होगी। 2 चीज़ें बीजेपी के पार्षद कमल वाघेला ने कही है, चूंकि इसी क्षेत्र के वो पार्षद है। सबसे पहले आपको वो पानी की टंकी दिखा देते हैं रवि, उसके बाद एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जिस पानी की टंकी से 40,000 लोगों को पानी सप्लाई होता है और इसी पानी की टंकी से जो पानी गया और उसके बाद लोग बीमार हुए। ये तस्वीर देखिए। अब दूसरी तस्वीर आपको बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बात शुरुआत में कही गई 8-10 दिनों से लोगों की तबीयत यहाँ पर ज़्यादा खराब है। बीजेपी के पार्षद कह रहे हैं कि अभी तक हमें वो सिस्टम मिला ही नहीं है जहाँ से लीकेज हो रहा है, जहाँ से सीवेज का पानी जो पाइपलाइन है उसमें मिल रहा है। अब आनन फानन में यहाँ पर लीपापोती कैसी की जाती है प्रशासन की वो देख लीजिए। ये भागीरथपुरा की पुलिस चौकी है और यहाँ पर एक वॉशरूम बना हुआ है, शौचालय बना हुआ है और आनन फानन में बताया गया कि इस शौचालय से ही लीकेज हुआ और ये जो पाइपलाइन यहाँ पर जा रही है उस पाइपलाइन में जाकर ये पानी मिल गया और इसके बाद लोगों ने दूषित पानी पीना शुरू किया। अब यहाँ पर सीमेंट भी आपको पुता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये एक पॉइंट ऐसा बना दिया गया और कह दिया गया कि यही वो पॉइंट है यहाँ से ये सारा रिसाव हुआ, जहाँ से शुद्ध पानी में दूषित पानी मिला और उसके बाद सारे 40,000 लोगों ने दूषित पानी पी लिया। अब बीजेपी के पार्षद कह रहे हैं कि हमने 3-4 जगह खोदा है, अलग अलग जगह पर खुदाई की है, जहां पर ये जांच करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कहां से ये लीकेज हुआ है। अभी तक लीकेज पकड़ में नहीं आया है मगर लिपापोती कर दी गई कि हमने तो पकड़ लिया है।